بدو ایاک نستعین۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میرا ایک ریکویسٹ ہوگا کہ کائنڈلی جس طرح آپ پیپلز پارٹی کے اور حکومتی ٹریجری بینچ کے سپیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے، 2-3 منٹ ایکسٹرا بھی دے دیتے ہیں، تو میں یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ادھر بھی انٹرپٹ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا، اسرائیل ایک انتہائی ظالم، مکار، جابر دشمن ہے پوری مسلم امہ کا۔ اس سے پہلے اس نے فلسطین میں مظالم کیے، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا، ان کے گھروں، اسکولوں، سڑکوں اور ہسپتالوں کو مسمار کیا۔ اب اس نے ایران پہ حملہ کیا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، مسلم امہ میں یہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، اور پوری دنیا کی نظر پاکستان کی طرف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور پاکستان کو OIC کا میٹنگ فوراً بلانا چاہیے، ایران کی ایشو پر اور فلسطین کی ایشو پہ اور اسرائیل کی جارحانہ حملے کے اوپر ہمیں مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر عمران خان آج وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جاتا، اگر آج یہاں پہ ہوتا، تو وہ کب کے مسلم امہ کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کی ترجمان بن جاتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری طرف سے نہ نتنیاہو کا نام لیا جاتا ہے، نہ اس کے علاوہ مودی کا نام لیا جاتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی ٹویٹر آتی ہے، نہ اس کے خلاف اس طرح کی آواز اٹھ جاتی ہے جو ہمارے ایک شعار ہے جو ہمارے طرف سے ہونا چاہیے۔ مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ عمران خان کو اسی بات کی سزا مل رہی ہے۔ جب رجیم چینج ہو رہی تھی تو اس سے پہلے اس نے 2 دفعہ مسلم امہ کا OIC کانفرنس بلایا تھا، اور اس نے یہ کوشش کی تھی کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس کو اکٹھا ہونا چاہیے، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، اور دشمن کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسلم امہ کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے وہ لیڈر آج ہمارے جیل میں ہے، ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک کو 3 کینسر ہاسپٹل دیے، ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک کو ورلڈ کپ کا اعزاز دیا، ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک میں نمل یونیورسٹی بنائی، ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک میں نوبل کاس القادر یونیورسٹی بنائی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کی سیرت پر ریسرچ یونیورسٹی تھی، آج جو پابند سلاسل ہے، اس کی بیگم بشرا بی بی پابند سلاسل ہے، شاہ محمود قریشی جس نے ہمیشہ پاکستان کا مقدمہ لڑا تھا، آج وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے ہمارے اس ملک میں جو سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے، جس کو اصلی مینڈیٹ ملا ہے، جو 2/3 میجارٹی سے جیتا ہے، وہ آج جیل میں ہے، اور جو صرف 17 سیٹ جس نے جیتی ہے وہ آج وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ تو میں یہ آپ سب کو درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے، اس پاکستانی عوام پہ رحم کرے۔ ایک ایسا لیڈر جو مسلم امہ کا ترجمان ہے، اس لیڈر کو فوراً رہا کیا جائے۔ اس کے بعد میں بجٹ پہ بھی 2-3 باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، یہاں پہ اکثر میں تقریر سنتا ہوں اور یہ بات ہو جاتی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، لیکن جب ہماری حکومت آئی، جب شہباز شریف کی حکومت آئی، جب اس نے اقتدار سنبھالا تو ملک کو دیوالیہ پن سے نکالا گیا۔ میں پتہ نہیں یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں کہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں۔ میں یہ فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت جو یہ بجٹ ہے، اس میں تقریباً 11,072 ہمارے فیڈرل ریونیو جنریٹ ہوگی، 11,072 ارب روپے، اور جو ہمارا خرچہ ہے، ایکسپینڈیچر ہے، وہ ہے 17,573 ارب۔ اب یہ اندازہ کر لے کہ 6,500 ارب تو آلریڈی ہمارا بجٹ خسارے میں ہے۔ یہ 6,500 ارب روپے ہم قرضہ لیں گے، ہم سود پہ مزید قرضہ لیں گے، اور ملک پہ مزید سود اور قرضے چڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد اس بجٹ میں مجھے اس بات پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے، جو صحت ایک ملک کا بنیادی
इंसान का बुनियादी ज़रूरत होता है, सेहत हेल्थ के बारे में इसने सिर्फ 32 अरब रुपए इस बजट में रखे हैं। एजुकेशन जिससे कौम बन जाती है, जिससे कौम उठ जाती है, उसके लिए सिर्फ 112 अरब रुपए एजुकेशन के लिए। डिफेंस के लिए 2550 अरब रुपए। ठीक है, डिफेंस और दिफा हम सब के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ भी इस कौम के बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन से कौम बनती है, उसके लिए इतना कम बजट नहीं रखना चाहिए। 734 अरब BSP प्रोग्राम के लिए है, अच्छी बात है, गरीब को पैसे मिलना चाहिए, लेकिन मैं इसमें ये डिमांड करना चाहता हूँ कि एक तो ये मुस्तहिकीन लोग हैं उसको पूरी तरह नहीं मिलता। मुझे मालूम है कि मेरे इलाके में ये सियासी तकसीम हुआ था, जो गरीब लोग हैं वो इसमें इस प्रोग्राम में नहीं है और ऐसे लोग उसमें शामिल हैं जो साहिब इस्तेदाद है। तो इसलिए इसमें दोबारा एक फ्रेश सर्वे होना चाहिए और वो गैर सियासी होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उसको इसमें प्रोग्राम में शामिल किया जाए। दूसरी बात ये मेरा डिमांड है कि खैबर पख्तूनख्वा में BSP में वो हिस्सा नहीं मिल रहा जो इसका बुनियादी हक है, जो NFC में इसका पोर्शन बनता है, जो खैबर पख्तूनख्वा की आबादी है, तो वो हिस्सा इसको नहीं मिल रहा, तो उसमें उसको पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर ये बात अक्सर की जाती है, जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया किया था, तो मैं कुछ इकनॉमिक इंडिकेटर आपके सामने रखता हूँ कि उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत रिजीम चेंज से पहले 42,000 अरब पाकिस्तान पर कर्जा था, अब पाकिस्तान पे 76,000 अरब है। 34,000 अरब 3 सालों में पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ गया। तकरीबन अगर इसको हम एवरेज वाइज तकसीम करें तो सालाना 11,000 अरब पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ा और इसके अलावा 900 अरब पर मंथ पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक मुल्क पे 34,000 अरब कर्जा 3 सालों में चढ़ जाए और ये कह रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहे और शहबाज शरीफ ने मईशत को संभाला। GDP ग्रोथ उस वक्त 6.1% थी, अब GDP ग्रोथ 2.7% है। अगर इसको हम एवरेज तकसीम करें 3 सालों में तो 1.5% GDP ग्रोथ है। इस तरह जो पेट्रोल रेट था उस वक्त, पेट्रोल रेट था 150 रुपये लीटर, इंटरनेशनल मार्केट में उस वक्त था $130 पर बैरल, और अब पेट्रोल रेट है 260 रुपये फी लीटर, इंटरनेशनल मार्केट में है अब ये $64 फी बैरल। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे तरक्की कहाँ हुई और महंगाई कहाँ कम हुई। डॉलर रेट उस वक्त 178 था इमरान खान की हुकूमत में, अब 283 पे है। इस तरह शरह सूद जब 2018 में इमरान खान को हुकूमत मिली तो 22% शरह सूद था, जब हम रिजीम इमरान खान के आखिरी वक्त था तो 7% शरह सूद था और अब 11% है। एग्रीकल्चर ग्रोथ पे अगर हम बात करें तो उस वक्त 4.4% थी, अब 0.5% है, और इसमें भी लाइव स्टॉक और फिशरीज को शामिल किया गया। मैं आपको हाउस को ये बताना चाहता हूँ कि 2004 में सर्वे हुआ था, 2006 में सर्वे लाइव स्टॉक का हुआ था। इन कई सालों से तो लाइव स्टॉक का सर्वे भी नहीं हुआ, तो किस तरह उसमें ग्रोथ आ गई, ये भी तकरीबन माइनस में है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.7% थी उस वक्त और अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.7% है, जो जिसको भी मैं फिगर समझता हूँ, क्योंकि लार्ज में स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो उस वक्त थी इमरान खान के दौर में 10.7% थी, अब -1.5% है। जब ग्रोथ -1.5% हो तो किस तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सकती है, किस तरह SME स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। सबसे पहले स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री ग्रोइंग के लिए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसमें ग्रोथ आ सकती है। इस तरह बिजली का रेट इमरान खान की हुकूमत में 16 रुपये फी यूनिट था, अब बिजली का रेट 60 और 65 रुपये फी यूनिट है। NFC में अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो आइन के आर्टिकल 160 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का शेयर 14.62%। इसके अलावा जो वार एंड टेरर में खैबर पख्तूनख्वा हर वक्त गलत पॉलिसियों की वजह से मुब्तला रहता है, 1% उसका शेयर रहता है। और मर्ज डिस्ट्रिक्ट फाटा की मर्ज के बाद 4.84 उसमें मजीद इजाफा हुआ तो 19.46% NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनता है। अभी तक वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिला। AIP के तख्त फाटा के फंडिंग में 400
478 अरब रुपए के बकाया जात है। मैं ये समझता हूँ, ये डिमांड करता हूँ कि फाटा दहशत गर्दी से बहुत मुतासरा हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगी लड़ी गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाशें उठाई गई। कम अज़ कम उनके साथ ये ज़्यादती न करे, उसका जो हक़ है उसको पूरा दिया जाए। इसके अलावा जो हमारे नेट हाइडल पावर है खैबर पुख्तनख्वा के 123 बिलियन है, मैं ये समझता हूँ कि ये 123 बिलियन खैबर पुख्तनख्वा को मिलना चाहिए। KPK में जो PSDP में जो शेयर रखा गया है 55 करोड़, टोटल 1000 अरब PSDP में शेयर है और सिर्फ KPK में सिर्फ उसके लिए 55 करोड़। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ज़्यादा नहीं की जाए तो ये भी अपने शाखर्चियों में खर्च करे। इसके अलावा मैं बिजली की मत में आता हूँ। आज KPK बिजली में KPK में अंधेरा है। वो सूबा जो 7211 मेगावाट हाइडल जो पानी से साफ बिजली माहौल दूस बिजली पैदा कर रहे हैं और उसका रेट किया है 6 रुपये पी यूनिट से कम रेट पे वो विफाक को दे रहा है और बदले में वो बिजली हमें 60 और 65 पे मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के हालात ऐसे हैं, वहाँ के जो दहशतगर्दी के लहर गुजर चुके हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री किस तरह ग्रो करेगी, वहाँ पे रोज़गार किस तरह आएगी। रोज़गार तब आएगी जहाँ पे वहाँ पे जब लोगों को सस्ती बिजली मिली। और अगर आपको 6 रुपये पी यूनिट दे रहे हैं तो ये जुल्म नहीं होना चाहिए कि आप बदले में उसको 60 और 65 पे दे दे। तकरीबन 67% जो हाइडल पावर है वो सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा विफाक को दे रहे हैं। इसके अलावा खैबर पुख्तनख्वा पेस्को की जो टोटल डिमांड है वो 2600 मेगावाट, लेकिन आज खैबर पुख्तनख्वा को जो सप्लाई मिल रही है वो 1100 मेगावाट। तो 2600 मेगावाट अगर उसकी डिमांड है तो उसको मिलना चाहिए। पेस्को का जो रेवेन्यू का रिकवरी का रेशो है वो तकरीबन 91% है, लेकिन इसके बावजूद हम आज अंधेरे में है। वहाँ पे IPPs जो इस मुल्क के तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। IPPs के सिर्फ 60 बंदों को हम 2300 अरब कैपेसिटी पेमेंट के मद में दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जिसने ये एग्रीमेंट की है और इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है उसको डी चौक पे उल्टा लटकना चाहिए और उसको फांसी देना चाहिए। इस तरह जुल्म इस मुल्क के साथ नहीं। आज अगर 60-65 पर अगर आज पाकिस्तान से इंडस्ट्री बाहर जा रही है, सारी इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर जा रहे, सिर्फ एक IPPs की वजह से जा रहे। इसमें आखिरी बात करें, कौन मुलव्विस थे, उनको सजा देनी चाहिए। इसके अलावा फाटा और पाटा ये जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दहशतगर्दी की तकरीबन 40 साल दौर गुजर चुके हैं। अब पहले हम रशियन वार में थे, फिर उसके बाद हम अमेरिकन वार में, उस 2 वार में ये इलाका बहुत ज़्यादा मुतासरा है और ये 2 इलाके बहुत ज़्यादा मुतासरा हुआ है। उस पर कम अज़ कम ये 10% जो सेल टैक्स लगा हुआ है ये ख़त्म होना चाहिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ अपने हल्के के हवाले से। मेरे हल्के में बिजली के हालात इंतहाई ख़राब है। स्पीकर साहब, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने हल्के के लिए बिजली का आवाज़ उठाता हूँ। मेरे हल्के में आज बिल्कुल मुकम्मल अंधेरा है, 1 या 2 घंटे बिजली आती है। उसके अलावा 4 फीडर ऐसे हैं जो 3 साल से मुकम्मल तौर पर बंद है, वो लोग बिल्कुल अंधेरे में है। उसके लिए मैं बार स्टैंडिंग कमेटी में भी मैंने आवाज़ उठाई, असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने आवाज़ उठाई, पेस्को के अहलकार के साथ भी मेरी मीटिंग हुई, लेकिन मुझे कहीं से सुनवाई नहीं मिलती। मैं मुतालबा करता हूँ कि मैं भी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मेरे हल्के के लोग वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको हक मिलना चाहिए। और मेरी जो प्रीवियस गवर्नमेंट में गैस की स्कीम्स थी वो ख़त्म होनी चाहिए। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, अगर आप इस मुल्क की मईशत को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप इस मुल्क में तरक्की लाना चाहते हैं, अगर आप इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहता है, इसका वाहिद हल है मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को रिहा किया जाए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू।